Okay, hello and welcome back. So another week to start. And to put it in another way is that another week is gone. So we are coming closer and closer to the exams, but I don't know how closer they are because अभी जैसे JEE मेंस का admit card कल आने वाला था. It was yesterday when the admit cards were supposed to have been issued. But issuance of the admit card has been postponed, so that's some kind of a hint. I don't know whether it is or not, but some kind of a hint कि हो सकता है कि exam भी postpone हो जाए, because it is somewhere scheduled in the middle of September. But now it has gone into a question mark. क्या होगा या नहीं at the middle of the September month. Let's hope it happens. ठीक है. In the meanwhile, good morning Bhavya, good morning Harshit, good morning Shreyashi. Well, so how was the weekend? Gaurav, good morning. How was the weekend? And I hope that you are on track as far as all your targets are concerned. I've been repeatedly harping on the fact that have a little bit of a targeting, because that motivates you, that spurs you on and helps you on into the momentum of studies. Because overall studies will not be fully exciting, but sometimes that running behind the target might make it a little exciting. I hope so. Okay? So we were discussing about center of mass and its utilities last time. तो हमने थोड़ा बहुत बैलेंसिंग के ऊपर स्टडी किया और एक टिल्टिंग के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे थे कि लाइक इफ आई हैव समथिंग लेट्स से, है ना, वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली, एंड लेट्स से इफ आई टिल्ट इट अ बिट एंड आई लीव इट, सो इट कम्स बैक, but if I tilt it too much and then leave it, then it falls down. So therefore there is a little bit of tilting allowed versus not allowed as far as toppling is concerned. So we were in the middle of the discussion of tilting. I think probably I'll just take one or two more questions and then move on. Okay. So today's first topic or agenda of discussion is on tilting. Fine. जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा is that suppose ये एक solid cone है. It's a solid cone. Question is, what is the maximum angle of tilt? The question is, what is the maximum angle of tilt? Go ahead. Question is, what is the maximum angle of tilt that this solid cone allows us to do? Go ahead. Maybe make the question more specific. I mean, or no toppling. Good morning, Aryant. For no toppling, what is the maximum angle of tilt allowed? That's the question. I'm still waiting for the answers. So still waiting for answer. Okay. In the meanwhile, maybe I will give one more also. The same is for the solid sphere also. Same question. What is the maximum angle of tilting? Aditya Mathur has given the answer to the first question, and that is tan inverse of 4r by h. Harshit Lohani has given it the other way around, and that is tan inverse of h by 4r. चलो ठीक है, देखता हूँ. I mean, use the standard values obviously. This is h and this is r. वो तो खुद ही जानती हो क्या करना. ये हो गया r. इसके अलावा
आज हम लोग एक चीज और भी इंट्रोड्यूस करेंगे. इन द मीनवाइल एक और आंसर आ रहा है. श्रेयसी हैज गिवन द आंसर ऑफ tan inverse of 4r by h. Same given by Aditya Mathur. ठीक है ना? Dehem has also given, Dehem Rajvanshi has also given tan inverse of 4r by h. चलो ठीक. Let me now come to the point, and that is पहले तो सॉलिड कोन का देख लेता हूं. तो इसका सेंटर मास कहां पे होगा ना, हमें पता है h/4. This is h/4. ठीक है. तो अगर मैं इस कॉर्नर को ज्वाइन करता हूं, ये लाइन इस वर्टिकल लाइन तक जा सकती है. तो बेसिकली द मैक्सिमम एंगल इज दिस. दिस इज द मैक्सिमम. ठीक है. Okay, more answers coming up. Cot inverse 3/4h or maybe 3r/4h probably. So I say tan inverse of 4r/h. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ. So like this is the angle that we're talking about. So that is the angle actually, which is r/4h. If I look at tan, if this is theta, I mean this is also theta, mind. So tan theta हो जाएगा r/h/4. So in this case, tan theta is equal to r/h/4. So that is theta is equal to tan inverse of 4r/h. ठीक है. tan inverse of 4r/h हम लोगों ने देखा सबसे पहले दिया है. First to give was Aditya Mathur and then followed by Shreyashi Deham. ठीक है. और भी कई सारे आंसर आया 4r/h करके. सो हमने भी यही दिया. अच्छा, हेमिस्फीयर का आंसर भी आदित्य माथुर ने दे दिया पहले, and that is tan inverse of 8/3. Okay, so I think that is also correct because if you look at the center of mass, this is 3r/8. तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करता हूँ कॉर्नर तक, तो ये एंगल तक अलाउड है. This is a theta, है ना? And if this is theta, then this is also theta. ठीक है. तो ये तो r है, ये r है और ये 3r/8 है. हमें पता है कि ये वाला हो जाता है 3r/8 and this is r. अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये आ जाता है थीटा. This is 3r/8 and this is r. This is theta. So therefore theta will be equal to tan inverse of 3r/8. Sorry, 3/8. ठीक है. अच्छा नहीं, sorry, 8/3. ठीक है. So theta is going to be in this case tan inverse of 8/3. That's the right answer, and that has been given correctly by quite a few. सबसे पहले आदित्य माथुर, followed by Som, Aryan, Garv, Dhruv, Deham, Jasraj, हर्षित. चल एवरीबॉडी परफेक्ट. तो यानी अब समझ में आ गया ना कि कैसे टिल्टिंग और वो रिलेटेड है, टॉपलिंग रिलेटेड है. So I think now you have mastered the concept. I don't think there is anything much to discuss anymore. Let me introduce another concept, and that is on finding center of mass of. These are called as shapes born out of revolution. ठीक है. Shapes which are born out of revolution are in general commonly named by OID. OID. कैसे? मैं suppose मैंने एक ellipse लिया. This is an ellipse. अब इसको इस सेंटर पे वो कर, ठीक है, सेंटर पे घुमा दो इसको. तो घुमा दोगे तो क्या होगा ना, एक देखना सॉलिड बनेगा. अगर फुल्ली फिल्ड कर दो तो एक सॉलिड बनेगा, which would be somewhat similar to what is a baseball. बेसबॉल नहीं, वो एक होता है रग्बी. रग्बी रग्बी का जो बॉल होता है वो देखना स्फेरिकल नहीं होता, वो स्फेरिकल में पकड़ने में मुश्किल होता है. तो द रग्बी बॉल इज समवट लाइक दिस. दिस सम काइंड ऑफ रग्बी बॉल. तो दिस इज हाउ इट इज. ये हो गया रग्बी बॉल. देखा होगा
so that पकड़ने में आसान रहे. So that is some kind of a ellipsoid. यानी एलिप्स लेके घुमा दो तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है that is called as ellipsoid. So this will be called as ellipsoid. ठीक है, ellipsoid. यानी एलिप्स को घुमाया तो बना एलिप्सॉइड. एक्चुअली देखा जाए तो स्फीयर इज नथिंग बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्फीयर इज नथिंग बट अ सर्कलॉइड. स्फीयर इज नथिंग बट अ सर्कलॉइड. ये सर्कल है, so we call it as a sphere. But what is a sphere? How do we get a sphere really? We can take a circle and then taking the diameter as the axis, we can just rotate the circle and the shape that will be born out of will be called as a sphere. So therefore, though sphere has a typical name of its own, but it can also be called as circloid, or maybe without the E also. Depends on how you want to spell it. Similarly, we also have something called as a parabola. And that is like this. That let's say this is a parabola. This is a parabola. Okay. Now we rotate it. This will be called as a paraboloid. ठीक है ना? This will be called as a paraboloid. ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग shapes बनता है. So today I will ask you one or two more questions and then we will move on to a new topic. And that is let me give you two questions. First question is, this is a hemisphere. This is a solid hemisphere. With density given by this, and that is अच्छा, Som has also asked कि sir CPT का paper discuss कर लो. बिल्कुल, I'm just starting it. They have said please repeat what you did after the question. ये आफ्टर द क्वेश्चन में कुछ करा ही नहीं ज्यादा. मैंने तो इतना ही बोला कि अगर कोई एक शेप ले लो जैसे एलिप्स, उसको घुमा दो तो एक सॉलिड बनता है तो उसको एलिप्सॉइड बोलते हैं. अगर एक सर्कल लेते हो डायमीटर के अबाउट घुमा दो तो बनता है स्फीयर, जो हम लोग कॉमनली स्फीयर कहते हैं. बट इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज अ सर्कलॉइड. एंड लास्टली आई सेड कि एक पैराबोला ले लो और उसको घुमा दो तो जो शेप बनेगा दैट कैन बी कॉल्ड एज अ पैराबोलॉइड. तो आज मैं उसी के ऊपर सवाल पूछने वाला हूं. दैट इज सपोज दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर विद डेंसिटी वेरिंग लाइक दिस विद द y axis. So find out, locate center of mass. That's a volume density, as you know, rho naught y is equal to rho naught into r minus y. तो इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर. ठीक है. अच्छा, वैसे सॉलिड का होता है 3r/8. वैसे सॉलिड का होता है 3r/8. इस केस में बता सकते हो कि ये 3r/8 से ज्यादा होगा या कम होगा? कैन यू प्रेडिक्ट अ बिट whether the center of mass will be at 3r/8, greater than 3r/8, less than 3r/8? That's the first question. Okay, Dhruv Sharma says कि कम होगा, Aryan says कि greater होगा, and Jasraj says less, Sania says less. What is rho naught? This is some kind of a constant. I mean, rho naught is a constant. Aryan, Kumar, Aditya, Sneha, सब लोगों ने बोला less होगा. नहीं, बेस से लेना. ये तो डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना. यही y is equal to 0 है और ये y is equal to r है. ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है. ठीक है ना. तो जैसे है वैसे ही, जिस तरीके से डायग्राम दिया गया उसी तरीके से लेना, कोई चेंज नहीं करना. ठीक है ना. नो चेंजेस है. चलो लेट्स कैरी ऑन. और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि सपोज मेरे पास एक पैराबोला है. सपोज एक पैराबोला है which is y square is equal to
दिस इज अ पैराबोलॉइड, और इसका भी डेंसिटी ऐसे ही है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर। चलो, और इस पैराबोलॉइड का हाइट h दे रखा है, और ये पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन, ठीक है ना। एंड यू टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ आइदर ऑफ देम। ओके, गर्व आल्सो सेज कि इसका जो आंसर है वो 3r/8 से कम आना चाहिए। ओके, सो दोस वर द प्रेडिक्शंस, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट एंड गेट द आंसर। इसका पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर टू 4x, तो घुमा के बनाया पैराबोलॉइड के लिए हाइट ऑफ h, हाइट h पे स्लाइस कर दिया, और डेंसिटी वेरिएबल है रो इज इक्वल टू रो नॉट। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ध्यान रखो ये सारे सॉलिड है। दिस इज आल्सो अ सॉलिड पैराबोलॉइड, ठीक है। क्रिश has asked is paraboloid a hemisphere? No, पैराबोलॉइड की जो शेप है ना, ये सर्कल नहीं है, मतलब ये सेमी सर्कल नहीं होगा, ये एक पैराबोला का शेप, उसी को घुमाया, जिस शेप को घुमाओगे उसी के साथ एक ऑयड लग जाए, ठीक है। So therefore can we call a cylinder as a rectanguloid? Think on it. चलो इसको स्टार्ट करते हैं पहले। Let me draw the side view. अगर मैं y डिस्टेंस दूर चला जाता हूं, है ना, तो हमने पहले भी कर रखा है, तो ये आ जाएगा dy, ठीक है ना। तो वही चीज आ गया कि ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देयरफॉर इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy, दैट्स द वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी इज रो नॉट इनटू r माइनस y, रो नॉट इनटू r माइनस y, ये डेंसिटी आ गई। तो ये आ गया क्या, दिस हैज गिवन मी द, ये हो गया, और y, तो ये हो गया dm, और ये हो गया y, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर, और इस बार नीचे भी इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, इस बार नीचे भी इंटीग्रेट होगा, फाइन, इस बार नीचे भी इंटीग्रेट होगा। अच्छा, हाँ, इसका पैराबोला का इक्वेशन गलत है। ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मैंने गलती से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे दिया, ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस वाज पॉइंटेड आउट बाय ऋषभ। ठीक है ना, ये इक्वेशन उल्टा हो गया, y स्क्वायर इनटू 4x तो इसका होता है। ये सब मैंने सिखाया हुआ है, बट चलो कोई, चलो एनीवे, तो लाइक दिस इज द थिंग, एंड दिस इज dm, तो dm हो जाएगा रो नॉट इनटू r माइनस y, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, पाई रो नॉट r माइनस y इंटू dy, ये हो जाएगा r क्यूब माइनस r स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर r माइनस प्लस y, ये हो जाएगा 0 से लेके r, और इसका एक एक्स्ट्रा y आएगा, दैट्स द डिफरेंस। तो खैर पाई और रो नॉट तो कैंसिल हो सकता है, बिकॉज़ दीस आर कांस्टेंट्स, है ना, इज इक्वल टू, अब इसके इसमें एक और y भी आ जाएगा, यानी कई सारे इंटीग्रेशन होंगे, तो कर ही लेते हैं फटाफट। 0 टू r, y के साथ r क्यूब y, यानी r क्यूब y dy, फिर माइनस r स्क्वायर y स्क्वायर dy 0 टू r, माइनस r
y cube dy 0 to r plus y4 dy 0 to r अपॉन इसके एक इंटीग्रेशन कम हो जाएगा तो लाइक r क्यूब इंटू इंटीग्रेशन dy 0 to r माइनस r स्क्वायर इंटू y dy 0 to r माइनस r इंटू y स्क्वायर dy 0 to r, ठीक है, प्लस y क्यूब dy 0 to r। अब ये यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 यानी r5 तो कॉमन आ जाएगा 1/2 है ना, y स्क्वायर बाई 2 का हाफ, y क्यूब बाई 3 का 1/3, y4/4 का 1/4 और प्लस y5/5 का 1/5 और नीचे हो जाएगा r4, सब में r4 आ जाएगा, dy का 1 माइनस हाफ माइनस 1/3 प्लस 1/4, दैट्स द डिफरेंस। तो r इंटू इसका हो जाएगा कितना 30 60 और इसका हो जाएगा 24 12 60 से क्या हो रहा है 30 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 12 बाई 12 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3, ठीक है ना, ये आपका आंसर इज इक्वल टू r इंटू 42 minus 35, 7/60, 7/60 into 12 by 15 minus 10, 5, and equal to 7/25. That's the first answer, and that is 7/25 r. एक बार मेरा भी आंसर कैलकुलेशन चेक कर लेना, किसी ने आंसर दिया इसका अभी तक? चलो, मे बी यू आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो लाइक दिस आंसर फाइनली, एंड दैट इज ऊपर अलग से इंटीग्रेशन होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर अलग से इंटीग्रेशन होगा, तो थोड़ा सा लंबा है इंटीग्रेशन बिकॉज देयर आर सो मेनी टर्म्स एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। बट दिस इज अ लिटिल लॉन्गर इंटीग्रेशन, उसमें कई सारे टर्म्स, उतना बड़ा इसमें नहीं होगा, दिस विल बी अ लिटिल शॉर्टर वन। तो इसका आंसर खुद निकालो। नाउ यू गॉट अ फील एज टू व्हाट हैज टू बी डन, है ना? तो प्लीज गो अहेड, जल्दी करो। आप पैराबोला इक्वेशन भी करेक्ट हो चुका है, ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लो। अच्छा, वी वर आल्सो कंपेयरिंग विद 3/8, है ना? तो 3/8 से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज लेसर। वैसे लेसर तो लॉजिकली भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक सेम डेंसिटी जब होता है तो 3/8 होता है। और अब क्या होगा देखो, r माइनस वाई के कारण क्या हुआ ना, ऊपर डेंसिटी 0 है, नीचे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो यानी सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, यानी 3/8 से तो कम होगा, दैट्स फॉर श्योर, है ना? 3/8 से कम होगा, तो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, ठीक है। चलो, नाउ गो अहेड विद द पैराबोला इक्वेशन। पैराबोला वाला रिलेटिवली आसान है, जल्दी करो। आई होप आई कैन रब इट ऑन।
मेथोडोलॉजी इज द सेम. यहाँ पे at a distance of y, this will be a disk. Of thickness, let's say dy. ये dy है, ये y. तो ये x हो जाएगा. x कितना होगा, है ना? x will be under root of 4ay. x. So pi x square. This is x. Into dy. This will be the volume. इसका आंसर आ चुका है, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है. First answer is from Aditya Mathur, 2h by 3, Aryan Jain 4h by 5, Rishabh Jain 4h by 5. Okay, I'm just solving it. So like pi x square हो गया इसका area of the disk. Into dy कर दिया तो volume आ गया. Into density, which is rho naught y square. अब जाके dm आया. Into y. y में तो y है, चलो ठीक. 0 से लेके x तक. Upon नीचे तो सिर्फ यही इंटीग्रेशन होगा, है ना? यानी पाई, अच्छा x स्क्वायर तो 4ay है तो लिख ही देता हूँ. पाई इंटू 4ay dy इंटू रो नॉट वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 0 से लेके x. ये हो गया सेक्टर इज इक्वल टू, देखो कुछ कुछ चीजें तो कैंसिल करेगा. पाई पाई और x स्क्वायर को अगर 4ay लिखते हो, ये 4a और 4a भी कैंसिल कर जाता है ना? तो यानी यहाँ पे आता है y y y, तो y4 dy 0 to h अपॉन रो नॉट भी कैंसिल होता है, अपॉन y क्यूब dy 0 to h. तो ये हो जाएगा इक्वल टू h5 by 5 अपॉन h4 by 4, यानी 4 अपॉन 5h. ठीक है. दो टाइप, तीन चार टाइप के आंसर है, तीन टाइप के आंसर है. अभी तक 2h by 3 आया, 4h by 5 आया, और अभी अभी एक और आया भी है दयम से, and that is 3h by 4. नहीं, 3h by 4 is not the right answer. The right answer is 4 upon 5h. ठीक है ना? That's the correct answer. Fine. चलो, I think let's put an end to this discussion now. सेंटर मास की एक लास्ट यूटिलिटी भी है, एंड दैट इज सेंटर मास का लास्ट एक यूटिलिटी है. ओ सोम सेज की सेकेंड लास्ट स्टेप समझा दो. और सेकेंड लास्ट स्टेप में कुछ खास नहीं था. पाई एक्स स्क्वायर रेडियस के हिसाब से एरिया ऑफ द डिस्क इनटू डी वाई इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इनटू रो नॉट वाई स्क्वायर इज द मास ऑफ द डिस्क इनटू वाई. सो दैट इज वाई डीएम, और वही डीएम नीचे भी है. अब तो इंटीग्रेशन रह गया था, तो मे बी जस्ट सी इट एंड ट्राई इट वंस. ठीक है ना? एक लास्ट चीज मुझे बताना था, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग ऑलरेडी जानते हो. पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. वो अलग बात है, इस चैप्टर में और डिटेल में करेंगे, बट देन यू ऑलरेडी नो. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला क्या है इसका? mgh. mgh एवरीबॉडी नोज. चलो ठीक है. मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इज दैट ये h कैसे होता है? दिस इज द हाइट with respect to what? हाँ, height with respect to what? Okay, let me answer it. With respect to a chosen base. मैं बताता हूँ एग्जांपल. सपोज ये मार्कर है और मैं पूछता हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, या व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो पता है क्या होता है? बाय डिफॉल्ट हम लोग इसका कैलकुलेशन ग्राउंड से करते हैं. आई विल रिपीट, बाय डिफॉल्ट इसका कैलकुलेशन हम लोग ग्राउंड से करते हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है ना? जैसे अरियंत ने बताया, इवन ध्रुव शर्मा ने ये बताया, गर्भ ने ये बताया कि
ओह अच्छा, देयर आर क्वाइट अ फ्यू आंसर्स. So let me read out the answers. पहली बात MGH तो कई ने दे दिया, स्नेहा ने दे दिया, केतव, ध्रुव, everybody is given. स्नेहा अग्रवाल. देहा में सेज की इसके इनिशियल पोजीशन के हिसाब से. अच्छा चलो ठीक है, अभी अगर मार्कर मैंने यहाँ पे रखा तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या मानो? इसलिए इनिशियल पोजीशन नहीं है. That's not the right answer. गर्भ से इसके ग्राउंड लेवल, मैं उसी पे बात कर रहा था. इज दैट बाय डिफॉल्ट जनरली हम लोग ग्राउंड लेवल ही लेते हैं. ये बाय डिफॉल्ट है, बट ये हमेशा नहीं होता. ठीक है ना? तुम छत को भी लेवल ले सकते हो, और अगर छत के हिसाब से करोगे तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव निकल आएगा. क्यों? फिर हाइट ऊपर थोड़ी है, हाइट तो नीचे आ गया ना, तो एच का वैल्यू फिर नेगेटिव लिया जाता. तो ऑल दीज थिंग्स आर नुएंसेस. इसलिए एच ऐसे नहीं कि बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वांटिटी. नो, एच इज विथ रिस्पेक्ट टू अ चोजन बेस. सो यू माइट से ये चोजन बेस मतलब हु विल चूज. द आंसर इज चूज हमें ही करना है. चूज हमें ही करना है. पर एक चीज है कि अगर मान लो मैंने कुछ नहीं बोला है तो यानी हमने ग्राउंड लेवल ले लिया. दैट्स अ बाय डिफॉल्ट assumption. बट ऐसे कोई रूल नहीं है. तुम टेबल टॉप को ले सकते हो, तुम छत को ले सकते हो, तुम ग्राउंड को भी ले सकते हो, और तुम अगर चाहो तो किसी और पॉइंट को भी ले सकते हो. इवन यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज द बेस इटसेल्फ वेयर द बॉडी इज देयर. तो इस चीज को ध्यान रखना. इसलिए मैं एक सवाल पूछूंगा, दैट इज कि सपोज मेरे पास एक ब्रिक है. ये है सपोज 30 सेंटीमीटर, नहीं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर. और ये सपोज 4 kg का ऑब्जेक्ट. Aryan has given कि with respect to anything. I think that's a good answer. कोई भी with respect to कुछ भी हो सकता है. It's your choice. But हाँ, by default ground लिया जाता है. That's a different aspect. अब ध्यान से सुनो. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. Question is, if any orientation is allowed, if any orientation is allowed, ठीक है ना? What is the maximum change in potential energy? अब जैसे इसको तुम ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी लेटा के रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कई तरीके से रख सकते हो, या और भी तरीके से रखना चाहते हो रख सकते हो. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अलाउड. इसके आंसर्स कुछ कुछ आने लगे हैं. श्रेयस इज गिवन 600 जूल. नो, श्रेयस इज चेंज्ड टू 2400. 2400 joule is the answer that is there till now. Sneha Agarwal 2400, Dhruv Sharma 2400. Dhruv Sharma is now given 2.4. ना कम क्यों कर दिया? हाँ, बाय द वे ये सेंटीमीटर है, ध्यान रख, ये मीटर नहीं है. अच्छा, जूल नहीं होगा. ओके, कृष्ण अगर इज नाउ चेंज्ड टू 2.4. कुमार आदित्य also 2.4, कृष्ण अगर 2.4, सोम दत्ता 2.4, श्रेयसी 2.4. आप सबने आंसर चेंज करने लगे कि वो सेंटीमीटर ध्यान में आया बात. चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. ओके, चलो ठीक है. ध्रुव शर्मा से 1.8 भी तो हो सकता है. नहीं, देखो मैंने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का आंसर एक ही हो सकता है. मैक्सिमम का आंसर आदित्य माथुर इज गिवन 1.8 या 18 आंसर. सानिया रावत इज आल्सो गिवन द आंसर एज 18 जूल्स. ओके चलो ठीक है. देखो व्हाट व्हेन विल द मैक्सिमम हैपन, ना जब तुम सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी वाले सिचुएशन से सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन तक ले जाओ. दैट्स व्हाट यू कैन डू. तभी देखो मैंने पहले ही बोल दिया था ये एनी ओरिएंटेशन इज अलाउड. यानी सबसे लोएस्ट तो यही है, लोएस्ट तो यही है. तो देयरफॉर, अच्छा बाय द वे पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल है ना वो है यू, कैपिटल यू. ठीक है ना? तो यू मिनिमम क्या होगा? एम जी एच. दिस इज द मिनिमम. एच मतलब 30 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट,
क्योंकि देख रहे हो सेंटर मास यहाँ पे भी रोल प्ले करता है। तभी मैं बोल रहा था कि पोटेंशियल कैलकुलेशन में भी सेंटर मास रोल प्ले करता है। कैसे? दिस हाइट इज विथ रेस्पेक्ट टू ए चोजन बेस टिल या टू या हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैंने कंप्लीट कर दिया। तो एच क्या होता है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू अ चोजन बेस। हमने ग्राउंड को ले लिया, बेस तो चेंज करूंगा, बट यू मैक्सिमम ये नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0.6, सॉरी 6, इसका आ गया 6, है ना। यू मैक्सिमम क्या होगा? यू मैक्सिमम इंटरेस्टिंगली पता है कब होगा? यू मैक्सिमम तब होगा जब तुम इसको ऐसे रखो। नाउ यू माइट से कि आप ऐसे कैसे रख दोगे? देखो कैसे रखेंगे वो एक अलग कहानी है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। I mean, some kind of position like this. Now, this may be difficult, but how can I help it? I mean, difficult होना अलग बात है, but theoretical तो possible है ना. So therefore, हमें इसका 3D डायग्राम निकालना पड़ेगा और उसका आधा करना पड़ेगा. तो 3D डायग्राम कितना हो जाएगा? 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, है ना. 144 16 9 25 169 130 सेंटीमीटर. तो 130 का हो जाएगा आधा, यानी 65 सेंटीमीटर. यानी यूमैक्स हो जाएगा एम जी इंटू एच. एच हो जाएगा 130 बाई 100. या ठीक है ना, सेंटीमीटर कर दिया, यानी इक्वल टू 52 जूल. ये देखिए, अच्छा बाई 2 भी तो, यानी इक्वल टू 26 जूल. 26 जूल. So therefore, U max, delta U max will be equal to 20 joule in this case. Okay, ध्रुव शर्मा से इसकी 18 होगा, हर्षित 18, सोम 18, आदित्य 18, सब बाद में 18 कर दिया, बट 18 नहीं होगा. आंसर इज 20. क्यों? क्योंकि मैं ऐसे भी तो इसको वो कर सकता हूँ ऐसे. नाउ यू माइट से आप करके दिखाओ. देखो प्रैक्टिकली क्या होता है नहीं होता है अलग बात है ना, बट थ्योरेटिकल तो मानेंगे ना. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी मेंशन्ड इफ एनी ओरिएंटेशन इज अलाउड, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो पॉसिबल हो पाता है किसी तरीके से. अब वो कैसे वो छोड़, somehow let's say it is allowed. अब देखो उसके अलाउ करने का एक तरीका पता है क्या है कि ये जो एकदम कोना है ना, उसको थोड़ा सा स्क्रैप कर दो ऐसे करके, हल्का सा, मे बी 0.001 मिलीमीटर स्क्रैप कर दो, तो एक छोटा सा बेस बन जाएगा. वहां पे इसको रखना इज रिलेटिवली इजी. ठीक है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी. तो ऐसे मना नहीं करेंगे. तो देयरफॉर ये वाला आंसर आ जाएगा इन दिस केस इक्वल टू व्हाट ना 20 जूल, क्योंकि हम इस पे कॉर्नर पे इसको ऐसे खड़ा रखें. नाउ इट मे बी वेरी डिफिकल्ट. सो मैं आस्क व्हाई आर वी टेकिंग अच्छा फर्स्ट केस का ओरिएंटेशन. देखो फर्स्ट भव्य इज आस्क्ड फर्स्ट केस का ओरिएंटेशन. फर्स्ट केस का ओरिएंटेशन ऐसे रखेंगे क्योंकि यू मिनिमम चाहिए कि सेंटर मास सबसे नीचे हो. तो आई थिंक दैट इज व्हेन द हाइट इज 30. इससे नीचे तो जा नहीं सकता है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता. मैक्सिमम के लिए मैंने वो डायगोनल 3D डायगोनल सबसे बड़ा लाइन है इसके अंदर, तो उसका फायदा उठाया. तो इसलिए 130 को बाई 2 करके आंसर आ गया 26 जूल और फिर डेल्टा यू मैक्सिमम, है ना. So मैं आस्क why should we take the center of mass? हाँ, अब now that is a more important question, है ना. एक्चुअली पता है क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब इस पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, बट एनीवे नाउ दैट यू आस्क इट, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. सपोज एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया मैंने, सपोज मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया. अब मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है. अब प्रॉब्लम क्या है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh. तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक पार्टिकल के लिए वैलिड है. mgh, m ऑफ अ पार्टिकल, पर ये तो पार्टिकल है नहीं, तो क्या करें ना, इंटीग्रेशन. सो सिंपल. तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे रेफरेंस ले लेता हूं.
और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे मान लो कोई dm एट ए डिस्टेंस ऑफ y सपोज, तो इसका जो du होगा वो क्या होगा, dm इंटू g इंटू y, m g h, तो dm इंटू g इंटू y, टोटल पोटेंशियल जी क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना, देख लो। तो total means what, integration. Now this is equal to g into, have a look, what is this, y dm, है ना, देखो what is this, ये तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होता है या नहीं। तो अब एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो, अब एक काम करो, इसको लिख दो एज g इंटू इंटीग्रेशन y dm बाय इंटीग्रेशन dm इंटू इंटीग्रेशन dm, कर सकता हूं ना। तो मैंने एक्चुअली ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा m, इंटीग्रेशन डी इज m, यानी m g इंटू ये क्या होता है, ये तो सेंटर ऑफ मास, तो देयरफॉर du का इंटीग्रेशन हो गया u इज इक्वल टू m इंटू g इंटू ycm, ये देखो इसका डेरिवेशन हो गया। नाउ सो वाज आस्किंग कि भाई मैं क्यों सेंटर ऑफ मास ले लूं, सेंटर ऑफ मास क्यों ले लूं, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, तो मैंने वो जस्टिफिकेशन भी बता दिया कि मैंने सेंटर ऑफ मास क्यों लिया, YCM। हाँ, इसका एक मैनिपुलेशन हमने जरूर किया कि इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन TM से, बट आई थिंक दैट्स अ वैलिड ऑपरेशन, वो हम विद दैट, है ना। आई होप नाउ यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। हमें चलो ठीक है, चलिए देखो आज हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को खत्म किया आज, वी हैव डिस्कस्ड सफिशिएंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस कहां-कहां पे कैसे है, आई थिंक नाउ वी हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया, ठीक है। चलो तो लाइक लेट्स मूव ऑन नाउ, आई होप दिस ओके, आई मीन आई होप यू कॉपीड इट डाउन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का फॉर्मल बिगिनिंग, एंड दैट इज वर्क विद एनर्जी। सर हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी या फिर मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? देखो पहले मैंने यू मिनिमम निकाला, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैंने निकाला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा मैक्सिमम चेंज। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 6 आया था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आया था 26, तो मैक्सिमम चेंज कब होगा, जब मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा। तो देयरफॉर तीनों चीजें निकाला था, यू मिनिमम, यू मैक्सिमम और फिर डेल्टा यू मैक्सिमम। तो डेल्टा यू मैक्सिमम क्या होगा ना, यू मैक्सिमम माइनस यू मिनिमम, तो आई हैव फाउंड आउट ऑल द थ्री, ठीक है ना, वन आफ्टर द अदर। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वर्क एनर्जी पावर। तो उसमें से ऑब्वियसली सारा तो इकट्ठे नहीं करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे वर्क के बारे में डिस्कस, व्हाट इज वर्क, है ना। तो वर्क इज सेड टू बी डन, है ना, when the point of application of force displaces in the direction of force। और अगर डायरेक्शन में नहीं है, कोई इधर तो कोई उधर है, तो दैट केस कंपोनेंट है नहीं। तो दैट्स हाउ वी डिस्कस अबाउट वर्क। तो वर्क हर केस में नहीं होता। अब जैसे मान लो ये दीवार है, अब मैं इसको पुश किए जा रहा हूँ, अब मैं सुबह से शाम तक पुश करूंगा, पसीने पसीने हो जाऊंगा, पड़ोसी बगल में से निकल के जाएगा, वो बोलेगा वाह भाई कितना मेहनत करता है। अब मेहनत का जो ट्रांसलेशन होता है वर्क होता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये साइंटिफिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पुश तो कर रहा होगा, मैंने काफी मेहनत किया होगा, पसीने पसीने हो गए होंगे, थक गए होंगे, टायर्ड हो गए होंगे, लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट तो नहीं किया ना, तो देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। तो देखो वर्क डन का जो साइंटिफिक आउटलुक है वो थोड़ा अलग है कंपेयर टू वर्क डन का जो प्रैक्टिकल हम लोग सोचते हैं। तो कई बार हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, दैट्स नॉट व्हाट द वे ऑफ साइंस थिंक्स। आई मीन साइंस थिंक्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट। यानी अब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने फोर्स इधर लगाया, लेकिन पता चला ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर गया, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हुआ नहीं, तो इन दैट केस दो चीजें कर सकता हूँ।
या तो फोर्स का कंपोनेंट कर लो जो कि अलोंग डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो जो अलोंग डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट है वो क्या हो गया f cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया f sin थीटा, है या नहीं? तो यानी वर्क डन हो गया इन दिस केस f cos थीटा इनटू s, ठीक है ना? तो इसी को ऑब्वियसली हम लिखते हैं fs cos थीटा, और cos थीटा देख के बाद में मोटिवेशन मिलता है डॉट प्रोडक्ट लिखने का, तो दैट इज इक्वल टू f डॉट s। इन केस देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस मतलब जैसे फोर्स बदलता जाए या रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इधर से उधर चले जाए, या कुछ इस तरीके से अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, इन दैट केस वी राइट इट एज इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू f डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है, f डॉट ds का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना न्यूटन्स लॉ में, ध्यान रखना न्यूटन्स लॉ में जब हम F इक्वल टू ma वगैरह टाइप के इक्वेशन यूज करते हैं, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया जाता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे वर्क डन इंटरनल फोर्स से भी हो सकता है। से ये कैसे? लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। सपोज एक बॉक्स है और मैं यहाँ पे ऐसे हूं, तो मान लो ये पूरे मिला के एक सिस्टम, यानी दो बॉक्सेस मेरे बगल में है और मैं ऐसे हूं, ऐसे हूं। अब तीनों मिला के सपोज एक सिस्टम माना जाता है, सपोज इन दैट केस अब अगर मैं इस बॉक्स को पुश करना शुरू करता हूं, ऑब्वियसली ये तो इंटरनल फोर्स के अंदर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बॉक्स को लगाया, बॉक्स भी मुझे लगाएगा, मैं इधर वाले बॉक्स को लगा रहा हूं, बॉक्स भी मुझे लगाएगा, तो पूरा सिस्टम को अगर मानते हो एज टू बॉक्सेस प्लस माई सेल्फ, इन दैट केस वॉट एवर फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन द बॉक्स दिस इज एन इंटरनल फोर्स। बट जरा सोचो, ये देखो इंटरनल फोर्स कैसे काम करता है। अब बताओ वर्क डन हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इन दिस केस हुआ है, ठीक है ना? इंटरनल फोर्स जो मैंने दिया है उसमें वर्क डन हुआ है। कैसे? ना देखो, मैंने ये जो फोर्स दिया है इसको वजह डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मेरा फोर्स इस वाले हाथ का फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, और दोनों का एंगल क्या हो गया ना, cos 0 डिग्री, तो लाइक 1, तो यानी पॉजिटिव वर्क डन। इसका जो वर्क डन है ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इधर का भी फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो यानी दोनों का वर्क डन इस केस में क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ, दोनों का वर्क डन पॉजिटिव। तो देयरफॉर ये जो मैंने इंटरनल फोर्स दिया है मैंने, इसके वजह से वर्क डन हुआ है। So therefore, when it comes to work done, internal forces also sometimes play a role. तो हमें इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली न्यूटन्स लॉज जब हम लोग यूज करते हैं तो हम ध्यान भी नहीं दे रहे इंटरनल फोर्स है, छोड़ो, जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन वर्क डन में we have to take care of both internal as well as external forces। तो ये ध्यान रखने वाला चीज, ठीक है ना? चलो, तो वर्क डन का कंसीक्वेंस देखते हैं, है ना? अगर मान लो यूनिफॉर्म फोर्स है, अगर यूनिफॉर्म फोर्स होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स, तो वर्क डन हो गया F इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, दैट इज इक्वल टू m by 2 इंटू 2s, दैट इज इक्वल टू m by 2 इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी mv स्क्वायर by 2 माइनस mu स्क्वायर by 2। So this is nothing but kinetic energy. Kinetic energy change rather. So therefore, work done is equal to delta KE. And even if the force is not uniform, let's say variable भी अगर हुआ तो ठीक है, तो in that case FDS हो जाएगा। FDS बोलते क्या हो जाएगा ना, m into v dvds into ds, तो क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू m into ds कैंसिल, v dv। अगर इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है, ये भी तो ये रिजल्ट दे रहा है। ये कभी कभी ना कैमरा तो ऐसे हिलने लगता है कि पूछो मत। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आई मीन कांट से। तो mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 एंड दैट इज आल्सो नथिंग बट डेल्टा p। यानी
इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन by all forces is equal to change in kinetic energy. Total work done by all forces is equal to change in kinetic energy. ठीक है ना? So that is the first theorem, and that is called as work energy theorem. Fine. So that is the first thing. So let me do one thing. ये जो हम लोग एक बॉल को ऐसे छोड़ देते हैं और वो नीचे आता है, और मान लो अगर h हाइट नीचे आया है, इन दैट केस इसका वेलोसिटी अभी हम लोग बड़े आराम से काइनेमेटिक्स से निकालते हैं। सपोज मैं कहता हूं नहीं, काइनेमेटिक्स बंद करो, इसको वर्क एनर्जी से कर। आई मीन यू मे और मे नॉट एंजॉय इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू माइट से ये तो बड़ा ऑब्वियस चीज है, ठीक है, लेट्स जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेलिटीज, और कोई बात। अगर मैं किसी भी जगह पे इसका अगर वो देखता हूं फोर्स, तो क्या है कि तो फोर्स दैट इज mg, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स ही है, तो इन दिस केस वर्क डन हो जाएगा mg into h into cos 0, and that is equal to mgh। ये वर्क डन हो, that is equal to change in kinetic energy, and half mv square minus initial kinetic energy is 0, therefore half mv square is equal to mgh, and v is equal to under root of mgh। So simple। ध्रुव शर्मा ने आंसर दिया, बिल्कुल सही बात बोला है, and that is what v is equal to under root of 2g। Now this is too simple, I know। I mean you might say इसका तो जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं, u 0 है, 2h हो गया, तो आ गया आंसर, दो लाइन में आंसर आ गया। सही बात है, सब कुछ सही है। It is just that if I ask you to do by work energy theorem, then this is what you are supposed to do, that's the point। और इस केस में तो अगर कर सकते हो, इस केस में लेकिन तुमको यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा अभी तक के नॉलेज के हिसाब से। एंड माइंड यू, because in class 9th you have read energy conservation, mind you we have not read energy conservation as yet, तो इसलिए energy conservation क्या होता है मुझे अभी फिलहाल नहीं पता, मुझे सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, ये मैं याद रख, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सपोज मैं एक काम और करता हूं, मैं एक पेंडुलम को साइड ले जाता हूं ऐसे, ठीक है, और उसको छोड़ देता हूं, और मेरा सवाल है कि थीटा एंगल कवर करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। This question can be just solved in 2 lines by using energy conservation method, I know that, but don't use that, use work energy theorem and then find out the answer to V3। यानी वेलोसिटी आफ्टर, आई मीन एक पेंडुलम को, ऐसे पेंडुलम था, मैं उसको साइड में लेके छोड़ दिया तो वो नीचे आएंगे, तो नीचे थीटा एंगल पे ये जो एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल, उस समय इसका वेलोसिटी निकाल, ठीक है, जल्दी करो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल लेनी है, हाँ वही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल के टर्म्स, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नो एनर्जी कंजर्वेशन तो एक लाइन में हो जाता, तो यूज प्रॉपर मेथोडोलॉजी, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। It's more of a formality, I mean, but then let's go through it, क्योंकि अगर कल को क्वेश्चन आता है कोई सब्जेक्टिव टाइप का, तो तुमको ये प्रोसेस फॉलो करके बताना पड़ेगा, because you already know by a different method is not a solution, ठीक है ना। ओके, ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ध्रुव शर्मा ने दिया, दैट इज रूट अंडर 2gl into 1 minus cos theta। Okay, Somdatta is given root under 2gl cos theta। चलो लेट मी सी, तो मैं एक काम करता हूं, सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे हूं अभी फिलहाल, which is suppose at an angle of 5,
तो ये लो, ये हो जाएगा LD5, LD5। और अगर इसमें फोर्स देखता हूं तो देखो ये फोर्स हो गया mg और एक टेंशन T है। तो therefore अगर मैं dw कैलकुलेट करता हूं तो देयर आर टू वेज, वन इज dw ड्यू टू mg एंड dw ड्यू टू टेंशन। अब ड्यू टू mg क्या होगा, है ना, तो ये 5 है, तो ऑब्वियसली फिर ये 90 माइनस 5 होगा और ये एंगल 5 होता है ना, रेगुलर। ये आ जाएगा इक्वल टू mg इंटू LD5 इंटू cos 5। क्यों, क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर ये 5 होता है तो ऑब्वियसली फिर ये 90 माइनस 5 होगा, ये तो 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा। तो LD5 इज द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला है ना, ये D5 एंगल लिया है, ये 5 है तो ये जो एंगल है इसको मैंने D5 लिया। आई होप यू आर एबल टू सी द एंगल्स, ठीक है ना। तो हो गया LD5, तो हो गया mg LD5 cos 5 प्लस टेंशन का वर्क डन क्या होगा, T इंटू LD5 इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है। प्राइमेट कैसे आ गया, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, पर टेंशन रेडियल है, तो दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, वो लिया जाता है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mgl cos phi d5 इनटू लिमिट्स हो जाएगा तुम्हारा जो है 0 से लेके थीटा तक, और इसका तो 0 हो गया, खत्म है। तो cos phi का क्या होता है sin phi, यानी हो जाएगा mgl sin phi, ठीक है, mgl sin phi। therefore half change in kind का half mv square is equal to mgl sin phi, यानी v is equal to under root of 2gl sin phi, ये आंसर, ठीक है। वेल किसी का भी आया तो नहीं, सबने कॉस के टर्म्स में आंसर दिया है, विच इज नॉट द राइट आंसर है। करेक्ट आंसर साइन वाई वाला ही होगा। आदित्य माथुर दास की सर सेंटर मास खत्म हो गया क्या? एक्चुअली पता है क्या है, द राइट वे ऑफ सेइंग इट वुड बी कि सेंटर मास निकालना कैसे वो खत्म हो गया, लेकिन सेंटर मास की यूटिलिटी अब अगले 2 साल तक चलते रहेंगे। इसलिए सेंटर मास अब कभी खत्म नहीं होगा, सेंटर मास विल ऑलवेज रिमेन विथ यू, ठीक है ना। हाँ, सेंटर मास निकालने के तौर तरीके क्या होता है वो लगभग खत्म, दैट इज मोर लेस ओवर, ठीक है ना। चलो, so that was about the velocity finding out in this particular case. In fact it's surprising कि बहुत कम आंसर्स आए, या कुछ लोगों ने सोचा ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्या करना है, हर चीज को ऑब्वियस मत मान लो, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, सोचना कैसे है ऐसे भी मत समझ लो, ठीक है ना। चलो, now let me put it the other way around, now let me put it the other way around, and that is suppose एक पेंडुलम है, कोई एल लेंथ, इनिशियली कुछ यू वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, तो स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन इज what will be the velocity and the tension after it has climbed up by an angle theta. You have to find out v theta and also the tension at that time. ये दो चीजें फाइंड आउट करना, जल्दी फाइंड आउट करो, ठीक है। In the meanwhile, let me take the attendance.
So anyway, some answers are coming up slowly. So let me take that up. Okay. Some answers have already started coming up. Aditya Mathur, Arnav, Aryan has given the answers. Let me quickly take it up. Maybe answer पढ़ के नहीं सुना, थोड़ा बड़े answers है. So like I don't expect easy answers. देखो इसमें भी सेम चीज आ रहा है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे फाई एंगल पे हूं और एक छोटा सा एंगल लेता हूं यहाँ पे लेट्स से T5, तो ये डिस्टेंस तो वही LD5 होगा, ये वाला. और फिर वही जो है mg और यहाँ पे टेंशन T. तो देखो टेंशन T का तो वर्क डन होगा नहीं. So this time dW will be dW due to mg plus dW due to tension. In this case dW due to mg हो जाएगा mg LD5 into. अब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है इस बार, इधर, तो हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा. अब वो कितना होगा? तो देखो अगर ये 5 होता है तो ये भी 5 होगा, ये 90 माइनस 5 तो ये 5 हो गया, यानी हो जाएगा 90 प्लस 5. ये देखो डिस्प्लेसमेंट इस बार थोड़ा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर है. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ एंड दिस इज द वेट mg. थोड़ा वर्टिकल नहीं हो पाया ये mg. तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच का एंगल ड्रॉ किया मैंने. ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो 90 प्लस 5 है ना, तो यानी हो जाएगा इक्वल टू cos 90 प्लस 5 प्लस T इंटू LD5 इंटू cos 90, यानी इक्वल टू माइनस MGL है ना sin 5 D5. cos 90 माइनस 5 मतलब हो गया माइनस sin 5, तो ये माइनस sin. तो वर्क डन इज इक्वल टू इसी का इंटीग्रेशन, यानी माइनस MGL है ना sin 5 D5 0 to theta. That's all. तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस MGL sin 5 का इंटीग्रेशन cos 5 है ना, तो cos 5 0 to theta इज इक्वल टू माइनस MGL. ये cos 5 माइनस 1 होगा, चलो कोई नहीं मैं कर देता हूँ है ना. अच्छा नहीं सॉरी, sin 5 का इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ MGL into 1 minus cos 5. You get work done, and that is change of kinetic energy, है ना. So therefore half mv square या v theta square minus half mu square is equal to yeah minus of MGL into 1 minus cos theta. यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, m से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी v theta is equal to under root of u square minus 2gl into 1 minus cos theta. ये आ गया इसका वेलोसिटी. और टेंशन का भी आंसर आ चुका है, कईयों ने आंसर दिया है पर मैं उसके ऊपर आज जाना नहीं चाह रहा, ठीक है ना. लेट्स नॉट गो इनटू दैट अगेन. टेंशन का कल कर लेंगे. अभी फिलहाल हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. याद रखना ये सबसे अच्छा मेथड नहीं है. हम इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में भी सॉल्व करेंगे आफ्टर डूइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एंड मे बी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट आल्सो. आई एम नॉट डिनाइंग द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव, डेफिनेटली कर सकते हो. क्योंकि मैंने बोला वर्क एनर्जी से करो, इसलिए मैं बोला चलो कोई नहीं, अभी वर्क जब एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे तब अलग से देख लेंगे, अभी फिलहाल वर्क एनर्जी से करो. तो वर्क एनर्जी से तो थोड़ा सा लंबा मेथड. वर्क एनर्जी इज अ स्लाइटली लॉन्गर मेथड देन energy conservation. Why I'm saying that is something that you will learn yourself. I don't think I need to emphasize it. But yes, by using work energy theorem,
This is what is. ठीक है, तो वर्क एंड थ्योरम्स अगर करोगे तो दिस इज हाउ दी सॉल्यूशन इज. टेंशन का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे और फिर इसके ऊपर और काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा. दिस इज बेसिकली मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन अ वर्टिकल सर्कल. वी विल हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस, दैट वुड बी टुमारो. तो कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. ओ, मैं एक चीज भूल गया. नाउ आई सडनली रिमेंबर्ड एंड दैट इज, सोम ने एक रिक्वेस्ट किए थे कि क्या हम पेपर को डिस्कस कर ले. चलो ठीक है, एक काम करेंगे, कल ना कुछ टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर पता है क्या होता है, टॉपिक स्टार्ट करते ही मैं फिर फ्लो में आ जाता हूँ, फिर मुझे याद भी नहीं रहता. इससे अच्छा है कि कल जो है ना एक बार पेपर डिस्कस कर ही लेंगे. तो आंसर चॉइसेस है क्या पेपर का? यू हैव द आंसर चॉइसेस? सर किसी पर स्क्रीनशॉट पड़े होंगे. अच्छा, तो कुछ लोगों ने यस बोला, कुछ लोगों ने नो बोला. तो मे बी दोज हु हैव द आंसर चॉइस कैन जस्ट मे बी पुट इट इन द ग्रुप. और अगर कोई नहीं पुट कर पाता तो मैं ही फिर ढूंढ के पुट कर दूंगा. ठीक है ना? नहीं है हमारे पास. है तो एक काम करो, ग्रुप में डाल देना. और अगर की नहीं है. अच्छा, की नहीं है, चलो ठीक है, फिर तो मैं ही पुट कर दूंगा. देन आई विल ओनली पुट इट, डोंट वरी, आई विल पुट इट. एंड इफ यू हैव, यू पुट इट योरसेल्फ. और नहीं तो मैं शाम तक मैं कर दूंगा. और उसमें एक फायदा क्या होना, मान लो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है तो इन दैट केस सबका ही हो गया आंसर, तो क्या फालतू डिस्कस करना है. तो इन दैट केस वी विल डिस्कस ओनली द फ्यू सिलेक्टेड वंस. ठीक है ना? चलो कल का कल देखते हैं. आज सर, हाँ बेटे. सर कल आधे घंटे पेपर डिस्कस कर लेंगे, आधे घंटे डाउट्स ले लेंगे, कुछ डाउट्स भी हैं. चलो ठीक है, वही मतलब व्हाटएवर वे, डजंट मैटर. ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? टॉपिक को आगे ना बढ़ाए तो वी विल डू इट सम अदर. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. ओके बेटे, हैव अ गुड डे.